Good morning, students. I hope that you had gone through all the previous videos of your B.Ed second year curriculum teaching of physical science. Now, moving in the next section, these are the topics which we had already covered. And in previous video, we had discussed the elements of a teaching lesson plan for a physical science subject. And we also discussed that what are the important terms, what are the important factors, what points we have to always keep in mind while making any type of lesson for any student of physical science. और ये सभी चीजें हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर अप करी थी. दिस इज द स्लाइड which we had covered up in the last session, elements of physical science lesson. And in this same manner, we will discuss now the how to learning objectives should be decided. What are the importance of a learning objectives? That is the today's our point of discussion. Now, there is a very famous point, or we can say a very important terms which you had always keep in mind, that it is important to understand that this is not a rigid picture of a lesson plan. Any lesson plan cannot be rigid for any type of situation or any type of topic. कोई भी लेसन प्लान इतना परफेक्ट नहीं हो सकता कि वो प्रत्येक सिचुएशन, प्रत्येक कंडीशन और प्रत्येक लर्नर के लिए वो फिट हो, या हर एक टॉपिक के लिए हम उसी प्रकार का लेसन प्लान बनाया जा सके. ऐसा कोई रिजिड लेसन प्लान या कोई कंक्रीट सोल्यूशन इस चीज का नहीं है. ये हमेशा डिपेंड करेगा लर्नर की कैपेबिलिटी पर, लर्नर की सिचुएशंस पर, लर्नर की प्री एग्जिस्टेंस नॉलेज पर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली what are the resources of the teachers which is going to be teach in the physical science lecture, what resources he or she have. तो इन सब चीज़ों पे ये सब चीज़ें डिपेंड करती है. तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि कोई भी लेसन प्लान रिजिड नहीं होता, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. आप अगर कंक्रीट और रिजिड लेसन प्लान लेकर क्लास में जाएंगे देन डेफिनेटली इट विल बी वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू. नाउ देयर आर अ नंबर ऑफ वेज टू डिजाइन अ लेसन, and you may think on many innovative design of it depending on the learning needs of the learners. So it's obvious that you have to always be creative, you have to always be innovative regarding the designing of a lesson plan which can fulfill the needs of your learner, and the context of the concepts, learning situations, and your own resourcefulness. How you are resourceful for your student, that is the more important part of any type of lesson plan. So always be remember कि कोई भी लेसन प्लान परफेक्टली रिजिड नहीं हो सकता, कंक्रीट नहीं हो सकता. हमने अगर कोई लेसन प्लान किसी सिचुएशन के लिए, किसी लर्नर के लिए या किसी टॉपिक के लिए बेस्ड होकर बनाया है, तो फिर भी हमें उसमें इम्प्रोवाइजेशन, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश होनी चाहिए. आई होप आप इम्प्रोवाइजेशन का मतलब समझते होंगे कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल जाना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने बात कहने का तरीका, अपनी एग्जाम्पल्स का जो आपका सेट मैनर है उसको चेंज करने के तरीकों को ही हम इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं. अब इम्प्रोवाइजेशन की सही हिंदी एक्चुअली मुझे पता नहीं, बट इम्प्रोवाइजेशन इज द वेरी वेरी की पॉइंट for making a good lesson plan for any type of physical science teacher, and not only for physical science, for every teacher improvisation is the biggest key for every teacher. Now moving to the next topics, that is learning objectives and key concepts. So learning objects, to understand that what are the learning objects and how we can make the learning objectives, ये चीज डिपेंड करती है कि आप क्या चीज पढ़ाने जा रहे हो. व्हाट आर द टॉपिक्स यू आर गोइंग टू टीच द स्टूडेंट्स, दैट डिसाइड्स दैट व्हाट विल बी द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. हर टॉपिक का सेम लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू टीच स्टूडेंट द utility of measurement, then definitely the learning objective will be that after the end of the lecture student will able to understand the importance of units in daily life. ठीक है, तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपको डिसाइड करने पड़ते हैं. नाउ सो द ऑब्जेक्टिव्स आर द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, in the process of the planning, and thus form the basis of the subsequent steps of the plan. If your objectives are predetermined, if your objectives are being set previously and it is being good, then definitely your planning will be good. Okay, so the objectives of the lesson need to be planned by keeping in view the nature of science. So यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं, that the see the chapter
aim of the learning physical science, see chapter 3. So basically this is the NCERT context. ठीक है, ये मैं आपको जो भी जो कंटेंट आप सर स्लाइड्स में देख रहे हैं, ये ध्यान रखिए, ये NCERT कंटेंट से लिया गया है. ठीक है, इट इज ऑल NCERT बेस्ड मटेरियल. Okay, this is NCERT based material. So NCERT had developed two parts, part 1 and part 2. Part 1, that is pedagogy of physical science and pedagogy of physical science. मतलब pedagogy of physical science part 1, pedagogy of physical science part 2. Part 1 is for B.Ed first year students and part 2 is for B.Ed second year student. Most of the time that स्टूडेंट सोचते हैं दैट ये काफी प्रॉब्लमेटिक चीज है, बुक्स अक्सर नहीं मिलती कि कौन सी टीचिंग बुक्स हम लें. ध्यान रखिए, आपको ये मैं चीज बता दूं, आप अगर बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं और आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोई बुक समझ में नहीं आ रही, कौन सी बुक लें, ध्यान रखिए एनसीईआरटी ने ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ऐसी कोई सब्जेक्ट नहीं है जो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जरूरी हो और उस पर कोई बुक पब्लिश ना करी हो. एनसीईआरटी का कंटेंट हर टॉपिक पर, हर सब्जेक्ट पर आपको मिलेगा, बस आपको थोड़ा मेहनत करके उसको ढूंढने की जरूरत है. अगर आप कहेंगे तो आपको इसके पीडीएफ, इसके ई बुक्स की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, पार्ट 1 की भी, पार्ट 2 की भी. एंड डेफिनेटली ये जो पार्ट 1 पार्ट 2 एनसीईआरटी बुक है, बहुत स्टैंडर्डाइज्ड, बहुत ही समराइज्ड ढंग से इसमें आपको बताया गया है. एक कंटेंट बेस्ड है, एक सीरियस बेस्ड इसमें पढ़ाई कराई गई है, बताया गया है कैसे चीजें होती हैं, गवर्न होती हैं. बट द प्रॉब्लम इज कि इसकी हिंदी वर्जन मिलना थोड़ा मुश्किल होते हैं. यू हैव टू रीड दीज बुक्स इन इंग्लिश. ओके, तो इंग्लिश में अगर किसी को इसके पीडीएफ चाहिए हो तो ही और शी कैन कॉन्टेक्ट मी एंड आई विल प्रोवाइड द ई बुक्स फॉर देम, डोंट वरी. सो तो यहां पर एक एग्जांपल लिया गया है दैट द नेचर ऑफ साइंस चैप्टर 3 and here is the aim of learning physical science and context the learner and her needs. So objectives is, if framed properly, that provide the direction for planning teaching learning experiences as well as recapitulation and evaluation. So suppose you are transacting the Archimedes principle to students and frame your objectives as, मान लीजिए आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रहे हैं. ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप पढ़ाने जा रहे हैं और आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये कुछ दो डिसाइड करते हैं. पहला आपका ऑब्जेक्टिव होता है स्टेटिंग द आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड वेरीफाइंग द प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंटली. तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स नहीं हो सकते, ये आपके ऑब्जेक्टिव तो हैं. ध्यान रखिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स तो हो सकते हैं कि भाई आज आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल को स्टेट करेंगे एंड उसका एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई करेंगे, ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव है. लेकिन इस प्रिंसिपल और इस एक्सपेरिमेंट के बाद स्टूडेंट के व्यवहार में, उसकी एक्सपीरियंसेस में जो चेंज आएंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, व्हाट हाउ द स्टूडेंट कैन यूज दिस आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन in the daily life. That is the learning objective. So now it is clear that your lesson will be proceed in this direction of a statement of the principle, its explanation and demonstration for experimental verification. तो आपका जो लेसन प्लान होगा वो इसी दिशा में जाएगा कि आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करेंगे, उसको एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई करेंगे. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए जाहिर है आप कोई ना कोई कूलिज ट्यूब या कोई ना कोई बर्नौलीज ट्यूब वगैरह लेकर आएंगे, जिससे आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल को वेरीफाई करेंगे. आर्किमिडीज प्रिंसिपल को वेरीफाई करने के कई और एग्जांपल्स भी होते हैं. ठीक है, तो ये सब चीजें आप करेंगे. तो ये आपके टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कैन बी डिफरेंट. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स से ज्यादा भी हो सकते हैं. जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बाद स्टूडेंट ये पहचान सकेगा कि कौन सी चीज वस्तु में पानी में तैरेगी, कौन सी चीज नहीं तैरेगी. क्या छात्र कम घनत्व वाले द्रव और ज्यादा घनत्व वाले द्रव में अंतर करना पहचान पाएगा, क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. तो ये सब चीजें इसमें समझी जाती है. तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की जब हम बात करते हैं तो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव से अर्थ केवल टीचर के ऑब्जेक्टिव से नहीं होता. हमारा उद्देश्य उन सभी ऑब्जेक्टिव से होता है जो उस विषय वस्तु के चारों ओर दैनिक जीवन में छात्र के जीवन से जुड़े हुए हैं. उदाहरण के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हम जो टॉपिक, जो पॉइंट्स बच्चों को बताएंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम बच्चों को बताते हैं कि भाई अगर कोई वस्तु अपने
अपने वजन से ज्यादा का पानी या कोई भी द्रव हटा सकता है तो वो उस द्रव में तैरेगा। तो अगर वो उसका वजन द्रव के वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के वजन के बराबर हुआ तब स्थिति क्या होगी, कम हुआ तो क्या होगी। तो हमें पता है कि 3 सिचुएशन होती हैं, एक पार्शियली फ्लोटिंग होती है, कंप्लीटली फ्लोटिंग होती है, एक सिंक एंड फ्लोटिंग होती है जिसमें वो डूबता हुआ तैरता है। तो ये सब चीजें सिचुएशन आपको बच्चों को बतानी पड़ेंगी और वही उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड भी करेंगे। सो दिस इज द example from which I want to understand you that why the learning objectives are important और कैसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपके टीचिंग ऑब्जेक्टिव से डिफरेंट होते हैं और हो सकते हैं, कभी कभार सेम भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये भी चीज टॉपिक टू टॉपिक डिपेंड करती है। किसी टॉपिक में टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स सेम हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स कैन नॉट बी सेम एज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन। So now your way of presentation of teaching learning activities will take a different course. Here you will first facilitate the learner to perform the experiment and try to help them to observe and infer that there is an apparent loss of weight of a solid when immersed in liquid. आप ये एक एक्टिविटी बच्चों को करा सकते हैं कि जब किसी बॉडी को किसी लिक्विड में इमर्स किया जाता है तो उसके वेट में थोड़ी कमी आ जाती है, एक apparent लॉस आ जाता है। उस लॉस की गणना आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। ये एक स्मॉल एक्टिविटी है जिससे बच्चों को उस दिशा में आप पुश करेंगे जिस दिशा में आप बच्चों को ले जाना चाहते हैं। नाउ द लॉस ऑफ अ वेट इज मस्ट बी इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो आप जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ उसके वजन को कैलकुलेट करें और वो बॉडी के वजन के बराबर हो। ये एक एक्टिविटी आप दूसरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से करवा सकते हैं। इन दोनों से यहाँ से जो रिजल्ट निकला R1, यहाँ से जो रिजल्ट निकला आपका R2, इन दोनों रिजल्ट को आप इक्विवेलेंट करेंगे तो आप फाइनली आर्किमिडीज प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने में सक्षम होंगे। तो ये जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, these are the basic key concepts which here we are going to discuss here. Now, so both the ways are equally accepted, but they focus on the achievement of different aims of learning physical science. Thus, it is for you to decide that in relation to your content area and the needed experience by the learner, which of the aims you wish emphasize on. Okay, so it is totally up to you. दोनों ही तरीके सही हैं, लेकिन जो मेरे हिसाब से सही है, जो मैं मानता हूँ as a science teacher, that both the activities should be conducted by the two groups of students. If suppose in your classroom there is 30 students, so divide the students in 15 and 15 two groups, and one group provide first activity, the second group provide second activity, and after the activity let the student compare the results of both the activities. जो भी दोनों एक्टिविटी से रिजल्ट आया उसको कंपेयर करने के लिए भी आप छात्रों को, स्टूडेंट्स को उसमें आप छूट दें तो वो खुद ही आपको कंपेयर करके बताएंगे। इन दिस सिचुएशन ऑलवेज रिमेंबर, इन फिजिकल साइंस टीचर शुड बी अ गुड ऑब्जर्वर, अ गुड इंस्ट्रक्टर, not a spoon feeding should be allowed in the physical science. जितना स्टूडेंट अपने हाथ से एक्सपेरिमेंट को करके सीखेगा, it is not possible to make them spoon feed and then we should understand कि स्कूल स्टूडेंट्स इस चीज को समझ लेंगे। So it is not possible in physical science. So ये दोनों ही एक्टिविटीज आप स्टूडेंट से करवा सकते हैं। And so in the constructivist perspective, learning objectives cannot be predetermined. However, it can be developed on the basis of interaction with the learners and question asked by them. ये एक another theory है, ध्यान रखिएगा। पेडागोजी में अक्सर इस टाइप का कंट्राडिक्शन आपको मिलेगा कि अलग अलग जो शिक्षाविद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी हैं। ये भी एक थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग इसका भी यूज करते हैं अक्सर डेली लाइफ टीचिंग में, कि इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसाइड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स प्रीवियसली और predetermined learning objectives are not possible. और उसकी बहुत सी वजह बताई जाती है। उसकी वजह यह बताई जाती है कि मान लीजिए जब हम क्लास में किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए पहुंचे और जो अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाकर गए हैं, वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स स्टूडेंट की प्री एग्जिस्टेंस नॉलेज पर बेस है। लेकिन स्टूडेंट्स की प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है ये हमको तब पता चलेगी जब हम बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, जब क्लास में जाएंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पहले से ही डिसाइड कर ली जाए, और इसी वजह से ये कंट्राडिक्शन थ्योरी भी कहीं कहीं पर देखने को मिलती है।
लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, रेयर टू रेयर केसेस में ही ऐसा होता है, क्योंकि अगर आप किसी स्टूडेंट को पढ़ाने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ द स्टूडेंट इज ऑफ क्लास 8, सो बेसिकली उसको सॉलिड लिक्विड गैसेस में डिफरेंस पता होता है, ठीक है, इतना उसका सोशल और जो उसकी क्लास एटमॉस्फेयर है, जो उसका स्कूलिंग है, वो इतनी डेवलप हो चुकी होती है कि वो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर को समझना स्टार्ट कर देता है। अगर आप बहुत छोटे क्लासेस में जाएं, अगर आप प्राइमरी में जाएं, प्राइमरी सेक्शन में जाएं, क्लास सेकेंड और थर्ड के स्टूडेंट से बात करें, तो वो स्टूडेंट एटलीस्ट शेप साइज को पहचानने में सक्षम होता है, वो आपको बता सकता है। तो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट एक कोरी स्लेट है, उसके पास पहले से ही उसका कुछ ना कुछ प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है, और ये बात सही है कि हमें अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज पर ही बनाने चाहिए। तो आज का ये जो लेसन हमारा था, आज का ये जो लेक्चर था, ये जो डिस्कशन था, ये प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज पर बेस्ड था, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पर बेस्ड था। सो दैट इज द वे हाउ वी कैन मेक आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एंड आज के इसमें ये जो दो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल का और ये दो एक्टिविटीज का, इनको आप एनसीईआरटी की बुक्स में जरूर देखिएगा। उसमें आपको परफेक्ट लेसन प्लान बनाने का तरीका तो नहीं, लेकिन हाँ, एक आदर्श लेसन प्लान, एक एक मानक लेसन प्लान किस तरीके से बनाया जा सकता है, उसका आइडिया आपको एनसीईआरटी बुक्स से जरूर मिलेगा। आई ऑलवेज प्रेफर एनसीईआरटी बुक्स फॉर द स्टूडेंट्स। आप प्लीज एनसीईआरटी बुक्स के साथ गो थ्रू होइए, उसमें आपको सभी प्रकार की नॉलेज इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड इफ देयर इज एनी स्टूडेंट हु वांट्स टू द ई बुक्स ऑफ part 1 pedagogy of physical science and part 2 of pedagogy of physical science, then he or she can contact me. I will provide them the ebooks. Till then, thank you learners. If you are watching this video first time, then please like and subscribe the channel also. Thank you students.